हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर AIB का जो सेकंड पार्ट है हम वो कर रहे हैं। इसकी जो आंसर्स कीज़ हैं, मैंने 50 क्वेश्चंस की अभी थोड़ी देर पहले अपलोड कर दी वीडियो, वो आपने काफ़ी देखी है। अब मैं इसके सेकंड पार्ट की कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि काफ़ी टाइम इसमें लग रहा था। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक्सप्लेनेशन की भी PDF नीचे दे दूंगा, अगर आप कहेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Statement 1. Under the Income Tax Act 1961, a deduction equal to 30% of the annual value is allowed while computing income from house property. Statement 2 है where the property has been acquired or constructed with the borrowed capital, the maximum deduction for interest payable on such capital is capped at ₹2 lakh subject to conditions. देखिए 51 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, जो कि इसमें दोनों ही स्टेटमेंट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 52 पे आते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज assertion and the other labeled as reason. Assertion है इसके अंदर, अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 a daughter in a joint Hindu family governed by Mitaksha law becomes a co-partner by birth in her own right just like a son. Reason है इसका, this provision grants daughters the same rights, liabilities and disabilities in co-partnership property as those of a son. In the context of the above assertion and reason under the Hindu Succession Act 1956, which of the following is correct? देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का इसमें जो दोनों ही जो जो बोथ जो फर्स्ट ए ऑप्शन है, ये दोनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पे, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट an acceptance must be absolute and unqualified. What is the legal effect if an offer response to a proposal introduces a new term? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इट कॉन्स्टिट्यूट ए काउंटर प्रपोजल देयर बाय रिजेक्टिंग द ओरिजिनल प्रपोजल। 54 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट provides the specific situation where the agreement without consideration is not void. Which of the following agreement is valid despite the lack of fresh consideration? ऑप्शन इसके अंदर 54 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, रिटन एंड रजिस्टर्ड प्रॉमिस बाय हस्बैंड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन टू ट्रांसफर ए प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। 55 पे देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन द जुडिशियल डॉक्ट्रिन दैट प्रिवेंट्स अ लेजिस्लेचर फ्रॉम conferring uncontrolled legislative power on the administration is known as the doctrine of, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, excessive delegation. Question number 56. For a petition for a nullity of marriage under the Hindu Marriage Act 1955 on the ground that consent was obtained by fraud, what is the statutory bar to granting the decree? 56 का भी आंसर देखिए इसमें फिर से भी ही है, द petitioner has lived with the respondent as husband and wife after the discovery of the fraud. क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। In the absence of agreement between the parties, the arbitration proceedings are said to have commenced under Section 21 of the Arbitration and Conciliation Act 1996. देखिए 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑन द डेट द रिक्वेस्ट फॉर द रेफरेंसेस रिसीव्ड बाय द रिस्पोंडेंट। 58 का करेक्ट 58 क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग public interest litigation expanded Article 21 of the Indian Constitution to include right to enjoyment of pollution free water and air? देखिए इसका आंसर फर्स्ट है ए, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 58 59 पे आते हैं। Which public interest litigation are resulted in the Supreme Court of India laying down the principle of absolute liability? 59 का देखिए सिंपल आंसर है ये तो, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। 60 है क्वेश्चन नंबर 60, in which of the following cases the Supreme Court of India has pointed out that the rule of nemo judex in cosa sua is subject to the doctrine of necessity? 60 के अंदर किस केस के अंदर कहा था? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जे मोहपात्रा एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। 61 में, एज पर सेक्शन 11 ऑफ द CPC फॉर रेस जुडिकाटा टू बी एप्लीकेबल ऑन द सब्सिक्वेंट सूट द फॉर्मर सूट, इसमें देखिए फर्स्ट है हैज़ बीन फाइनली डिसाइडेड, सेकंड है कैन ओनली बी इंस्टीट्यूटेड प्रायर टू द सब्सिक्वेंट सूट, और थर्ड है रिलेट्स टू द सेम मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट, is between the same parties or between parties under whom
दे और एनी ऑफ देम क्लेम। देखिए बहुत वैसे सिंपल आंसर क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा अगर सेक्शन 11 को ठीक से पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर इसमें। ठीक है, 1 3 4 62 है इसके अंदर, वेयर द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एग्जीक्यूशन फॉर बाय डिटेंशन इन प्रिजन शैल नॉट बी ऑर्डर्ड अनलेस आफ्टर गिविंग द जजमेंट डेटर an opportunity of showing cause the court is satisfied that the first, a judgment debtor is likely to abscond or leave the local limits of the jurisdiction of the court. Second, a judgment debtor has before the institution of suit in which the decree was passed dishonestly transferred any part of his property. Third, had decrees for some for which the judgment debtor was bound in a fiduciary capacity to account. Fourth, that judgment debtor has or has had since the date of the decree the means by to pay substantial amount of the decree and neglected to pay the same. देखिए इसमें सेलेक्ट करने हैं आपको करेक्ट आंसर्स। देखिए जो 62 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है इसके अंदर, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। 63 क्वेश्चन नंबर, एज पर द CPC a decree ex parte can be set aside against a defendant. One है if he satisfy the court that the summons was not duly served. Second, if he satisfy the court that he has prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was called on for hearing. Third, if he satisfy the court that there has been an irregularities in the service of summons despite the fact that the defendant had notice of the date of hearing and had sufficient time to appear and answer the plaintiff's claim. फोर्थ है विदाउट नोटिस बीइंग सर्व्ड ऑन द ऑपोजिट पार्टी। आपको देखिए सेलेक्ट करने हैं इन चारों में से ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड। 64 पे आते हैं, व्हेन इज अ कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन इन पब्लिक इन पुलिस कस्टडी एडमिसिबल अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 64 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली इफ़ इट इज़ मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। आपको किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे पास एक्सप्लेनेशन बनी हुई है, लेकिन मैं क्योंकि आपको आंसर्स ज़्यादा जल्दी चाहिए तो मैं इसलिए मैं उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी है। 65 पे आ जाते हैं, विच सेक्शन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 परटेन्स टू ऑप्शन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। क्वेश्चन है 65 का आंसर है ऑप्शन बी, इसमें सेक्शन 39 इज़ द करेक्ट आंसर। 66 पे चलते हैं। देखिए इसमें जो है रीड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन मैं 66 का जो आंसर है वो भी बी ही है, तो आप उसमें मार्क कर लीजिए। मैं 66 नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि मुझे जिसने ये भेजी है PDF थोड़ी क्लियर नहीं है। ऐसे ही मैं आपको 67 का भी आंसर बता देता हूँ। 67 का भी आंसर डी है। 68 पे आ जाते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए 68 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 51A जी। ये तो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल वो लिखे गए होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट तो आपको दिख गया होगा उसमें। 69, द ग्राउंड्स फॉर द डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 आर दैट दी। इसका देखिए करेक्ट आंसर है नन ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। 70 पे आते हैं, एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंटरमीडियरी विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स means any person who on behalf of another person receives, stores or transmits that record or provides any service with respect to that record and includes। 70 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन, इसमें सारे ही 1 2 3 जितने भी हैं डी, ऑप्शन डी। अंडर 71 पे आते हैं, अंडर सेक्शन 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। 71 का देखिए करेक्ट आंसर है बी, दैट इज रिफ्यूजिंग टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11। 72 पे आते हैं, अंडर सेक्शन 9A ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट अ लीगल एड कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बार काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ। 72 का देखिए ऑप्शन सी, नॉट एक्सीडिंग 9 बट नॉट लेस देन 5 मेंबर्स। 73 पे आते हैं,
73 क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर द डिसिप्लिनरी पावर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑप्शन 73 का इसमें ऑप्शन बी ही इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 36 अगर बेर एक्ट लगे होंगे तो उसमें आपको दिख गया होगा। 74 में मैच, या आपको उसमें मैच करना है टोर्ट के साथ में, और जो लीडिंग केसेस हैं उसके हिसाब से आपको मैच करना है। 74 का देखिए करेक्ट आंसर इसमें सी होगा, जो करेक्ट मैच होगा इसका वो ऑप्शन सी होगा। 75 पर जाते हैं। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हैज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 3 क्लोज 2 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 शैल कंसिस्ट ऑफ। 75 का देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहता है ये चेयरपर्सन एंड सच अदर पर्सन members as may be prescribed. 76. In which of the following cases the Supreme Court of India held that the preamble is not part of the Constitution? 76 का देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इन रे द बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव। ये इन्होंने सबसे पहले काटा हुआ है इसको। ओके आओ, ठीक है, इन रे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 77 में आते हैं। Which article in the Constitution of India relates to the subject matter of laws made by Parliament to give effect to treaties and international agreement? Correct answer is option C, Article 253. 78 पाते हैं। In which of the following judgments was the issue of right to privacy dealt with by the Supreme Court of India? इसके अंदर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास 78 में, लेकिन जो डी हैं जितने ही 1 2 3 4 सभी करेक्ट हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज रिक्वायर्ड इफ टेरिटरीज सीडेड टू एनी अदर कंट्री बाय द यूनियन ऑफ इंडिया? 79 का देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट बाय द पार्लियामेंट एंड देन एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ रेफर्ड a question to the Supreme Court and the Supreme Court as per the article 143 of the Constitution of India has advised the president accordingly। देखिए 80 का जो क्वेश्चन है वैसे तो होना चाहिए ए ऑप्शन, ठीक है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये इस पे ऑब्जेक्शन रेज होगा और ये क्वेश्चन डिलीट किया जाएगा 100%। मुझे चांस ऐसा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी एम्बिग्यूटी है। In a criminal case, 81, in a criminal trial of a defamation, the trial court, that is the High Court, has restrained publication of any news on the given case. Which of the following constitutional powers has been exercised by the High Court while passing given order? देखिए 81 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ इनहेरेंट पावर। नेक्स्ट पे चलते हैं 82 पे। The Supreme Court of India has declared that right to information is a fundamental right of every citizen of India. Which of the following stated provisions is used as source of the fundamental right given by the Supreme Court of India? 82 का correct answer is option C, Article 19(1)(a) Constitution of India। 83 पे आते हैं। Which of the following schedule of the Constitution of India deals with the subject matter ऑफ वैलिड ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस? 83 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि शेड्यूल 9 में दिया गया है। 84 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट है, द आर्टिकल इज साइलेंट अबाउट द लोकस स्टैंडाई अबाउट हु मे अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेकेंड है, द आर्टिकल इज साइलेंट अबाउट द ऑपोजिट पार्टी अगेंस्ट होम द रिलीफ अंडर आर्टिकल 32 में बी ग्रांटेड। थर्ड है, द आर्टिकल क्रिएट्स रूम फॉर इवन अ सिक्स टाइप ऑफ रिट विद इन द स्कोप। इसके देखिए आपको ऑप्शन जितने हैं वो चूज़ करने हैं। देखिए करेक्ट आंसर होगा जितनी सारी स्टेटमेंट हैं दे आर ऑल ट्रू, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 85 पे आते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 129 एंड 215 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स आर court of records and process contempt jurisdiction. What is the true about the lower judiciary in the same connection? 85 का correct answer है option D, that is the respective high courts can take up the matters of such contempt under whose jurisdiction the lower court falls. 86 पे आते हैं। The Supreme Court of India in R.K. Anand versus Registrar Delhi High Court held
हेल्ड एन एडवोकेट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट फॉर 86 में देखिए करेक्ट आंसर है सी, इंटरफेयरिंग इन अ क्रिमिनल ट्रायल बाय अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस अ विटनेस। 87 में देखिए मैच करना है आपको। एक जगह ये सेक्शंस दे रखे हैं और उसके साथ में कहाँ कहाँ पे आते हैं, तो बेर एक्ट है आपके पास, इजीली इसका आंसर कर सकते थे। तो इसमें 87 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब 88 पे आते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हाट हैपन्स इफ द प्रिंसिपल डेटर लीव्स पार्ट ऑफ द डेट अनपेड एंड देयर आर टू और मोर को श्योरिटीज। 88 का करेक्ट आंसर है इसमें सी, दैट इज द को श्योरिटी शेयर द अनपेड पोर्शन इन इक्वल कंट्रीब्यूशन। 89 पे आते हैं। अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 when can a defendant in possession of a movable property be compelled to deliver it to the plaintiff? 89 का देखिए करेक्ट आंसर है ए, when the property is held as agent or trustee of the plaintiff। 90 पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985 अ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर टू और मोर स्टेट्स exercise the same jurisdiction power and authority as an administrative tribunal for those state। statement 2 है, for the purpose of contempt tribunal exercises power similar to those of high court and reference to high court in the contempt court act 1971 as construed to include such tribunals in the context of the above statement under the administrative tribunal act 1985 which one of the फॉलोइंग इज करेक्ट। 90 का करेक्ट आंसर है डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 91 पे आते हैं। 91 कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज assertion ए एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन। assertion ए कहती है मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल एंड नॉट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। रीजन है द काउंसिल ऑफ स्टेट्स में ओनली मेक रिकमेंडेशंस ऑन मनी बिल्स within 14 days but the house of the people may accept or reject them and in either case the bill is deemed to be passed in the context of the above assertion। आपको बताना है 109 के अंदर क्या आएगा। 91 का देखिए करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, बोथ हैं दोनों ही ठीक है। 92 पे आते हैं। A company registered under the Companies Act 2013 is required to file a declaration of commencement of business before starting operation. Before starting operations, the directors ignores this obligation and the firm commenced business activities without filing the declaration. How much penalty कितनी उस पर लगेगी? पेनल्टी कितनी लगेगी? 92 का देखिए करेक्ट आंसर है बी, 50,000 रुपीज़। 93 क्वेश्चन, इफ मल्टीपल ऑफेंसेस कैरी डिफरेंट पनिशमेंट बट इट इज़ अनक्लियर विच वन ऑफ हैज़ बीन कमेंस्ड, हाउ does section 72 of the Indian Penal Code ensure proportional justice? 93 का करेक्ट आंसर है ए, बाय imposing punishment for the offence with the lowest prescribed term। 94 कहता है मिस्टर एक्स owns a bakery where he employs a Y and a 16-year-old adolescent। At first X gives Y every something ऑफ संडे की छुट्टी देता है। आफ्टर 2 months X decide to change the weekly holiday to Wednesday and passes a notice about this change on the bakery wall। According to the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986 this changes। 94 का देखिए करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, ये इनवैलिड है सिंस वीकली हॉलीडेज कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 3 months, 3 महीने तक नहीं कर सकते। which person will not be treated as a consumer under the definition of the Consumer Protection Act 2019? A person who purchases a refrigerator on installment for home use। 95 का देखिए करेक्ट आंसर है सी, जो है पर्सन हु परचेजेस गुड फॉर पर्पज ऑफ रीसेल फॉर एनी कमर्शियल पर्पज। 96 का है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल्ड एज assertion, दूसरा रीजन है। assertion कहता है द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of an offence in cases where the punishment is by court martial or where the sentence is death। reason है
This power under Article 72 overrides and completely nullifies the powers of the governor to commute or remit the death sentence under state law. 96 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ए भी ट्रू, ए ट्रू है और आर फॉल्स है. In the following 97 का है, in the following question the statement is followed by two conclusions, 1 and 2 statement. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, a magistrate may issue protection under the order to prevent the respondent from committing acts of domestic violence contacting the aggrieved person, alienating assets or stridhan without permission or causing harm to her dependents. Conclusions हैं इसकी. A1 जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर है, ठीक है. मैं इसमें सीधा आंसर ही बता देता हूँ. 97 का ऑप्शन सी है. बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो. 98 में according to the Motor Vehicle Act 1988, which factor determines the jurisdiction of the licensing authority in applying for a driving license. 98 का करेक्ट आंसर है डी, the place where the applicant ordinarily reside. 99 है, if a convict sentenced to life imprisonment is being considered for remissions fractions under section 57 of the Indian Penal Code, which equivalence term of years is applied by the court. 99 का देखिए करेक्ट आंसर है बी, 20 years of imprisonment. 100 क्वेश्चन नंबर लास्ट है. अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 and under what circumstance is the completion of 5 years of continuous service not mandatory for payment of gratuity. इसका जो 100 का क्वेश्चन नंबर है वो है सी, डेथ और डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉय ड्यू टू. मेरा देखिए मैंने इसमें फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो उसको जाके देखिए. अगर आप वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू एंड आई होप आप सभी लोग पास हो जाएंगे. क्वेश्चन थोड़ा पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि काफ़ी इसमें असर्शंस और रीजंस वाले क्वेश्चंस दिए हैं. बट आई स्टिल होप दैट यू विल, क्योंकि इसके अंदर देखिए ज़्यादा नहीं है, 40 to 45% करेक्ट क्वेश्चंस आपको आंसर्स देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने होते. इसलिए चिंता मत कीजिए, डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल ईजिली clear the exam. Thank you so much for watching.